Hello students, in last lecture we discussed about the path length and displacement and the reference frame. And then after we discussed the one dimensional motion, two dimensional and three dimensional. I hope सब लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका है. Now we move to the next topic, that is the IMP topic of this chapter, average speed and average velocity. See, average speed and average velocity. Average word. When we use the average word, when there are more than one observation, so we go with the average value. जैसे 10th में आपके हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आएंगे, बट जो परसेंटेज होगा वो होगा एवरेज. करेक्ट. तो एवरेज कब लिया जाता है? व्हेन देयर इज मोर देन वन ऑब्जर्वेशन. सो कंसीडर अ पॉइंट बी. बी कंसीडर एज अ भावनगर and point A consider as Ahmedabad, and bus start to move from भावनगर to Ahmedabad. बस भावनगर से अहमदाबाद जा रही है. So in between भावनगर to Ahmedabad there are many stations. Station number 1, station 2, station 3, station 4. So this is the path B1234A. So total distance traveled by bus B1234A. ये होगा अपना टोटल डिस्टेंस जो बस ने ट्रैवल किया है. Now at point B the time is 12 PM. यानी जब बस स्टार्ट हुई थी वहां उस टाइम पर टाइम था 12 PM and bus end its journey at 5 PM. So time interval is 5 hours. Now at point B, when bus start its motion, its speed is 10 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि बस स्टार्ट हुई होगी तो ऑब्वियस उसकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी स्टार्टिंग में. देन एट पॉइंट 1 there is very less traffic and good condition of road. So speed of a bus is there 100 kilometer per hour. So at the beginning 10, then after 100 kilometer per hour. But nearer to the point 2 there is a crossing and the crossing is closed at that time. तो obvious बस को खड़ा रहना पड़ेगा तो speed होगी 0. So at a different position the speed is different. Sometimes 10, sometimes 100, sometimes 0. So we have to go with what? Average. अभी हमने डिस्कस किया मोर देन वन वैल्यू, सो वी गो विद द एवरेज. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, उसका ये सिंबल है बिटवीन लेस देन और ग्रेटर देन, और वी बार इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल. एवरेज स्पीड is equal to total distance traveled upon time interval. I hope all of you understood this, why we go with the average, because there are more than one values of speed. Sometimes बस की जो स्पीड थी वो 10 थी, sometimes 100 थी, sometimes 0 थी. Now we are joining B and A directly. So this is displacement. The shortest path, it is displacement. So now move to the average velocity. The time interval is again 5 hours. बस जो है वो 12 o'clock को स्टार्ट हुई थी और 5 PM को उसने जर्नी कंप्लीट किया हुआ है. तो डिस्प्लेसमेंट होगा AB और टाइम इंटरवल होगा 5 hours. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल. Displacement upon time interval. Now
See the formula of average speed. Average speed belongs to distance travel, that means path length. और हमें पता था path length always positive. तो average speed belongs to path length, so average speed is also positive. Where average velocity belongs to displacement, and we know that the displacement is maybe positive, negative or zero. That's why average velocity is also positive, negative or zero. The relation between path length and displacement. पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो रिलेशन था वो क्या था? पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट था. तो वही रिलेशन स्पीड और वेलोसिटी के बीच में भी आएगा. देयरफॉर एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. The relation between path length and displacement and speed and velocity is same because speed belongs to path length and velocity belongs to displacement. So I hope all of you understood this point. See, you did speed equal to distance upon time, so meter per second or kilometer per hour. Distance we measure in meter, so time in second, distance in kilometers, so time in hour. So I hope all of you understood this point. The whole distance traveled B1, 3, 4A, it is path length. And time interval is 5 hours. If we do total distance traveled upon time interval, so we get average speed. Path length upon time gives average. I hope all of you understood why we are using the average word. And average velocity is equal to displacement upon time, that is AB. Average speed is always positive and velocity may be positive, negative or zero, and this is the relation between speed and velocity. I hope all of you understood this page. Now move to the second concept. Few cases of average speed. First, uniform speed. Uniform means what? Equal, same. So consider this is a bike. ये अपनी धूम पिक्चर की बाइक है, जॉन अब्राहम की, and covering d1 distance in time t1, d2 distance in time t2 and dn distance in time tn. This biker moving over a straight path and covering d1 distance in t1, d2 in t2, dn in tn. Here d1, d2, dn all are 1 kilometer. T1, T2, Tn all it is 5 minutes. That means बाइकर जो है वो 1 किलोमीटर 5 मिनट में कवर कर रहा है और ये यूनिफॉर्म है. 1 किलोमीटर 5 मिनट में, बाद में वापस 1 किलोमीटर वापस 5 मिनट में, बाद में वापस 1 किलोमीटर वापस 5 मिनट में. इट्स एग्जाम्पल. सो इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड का डेफिनेशन क्या होगा? इफ अ पार्टिकल कवर्ड equal distance in equal time. Equal distance in equal time interval, it is called uniform speed. I hope all of you understood it. Now move to the non-uniform speed. In a non-uniform speed, again we are taking a straight path. Again our biker, John Abraham, and d1 distance covered in time t, d2 distance in t. देखो यहाँ पर मैं d1 d2 लिख रहा हूँ पर टाइम को t1 t2 नहीं लिख रहा हूँ. इसका मतलब टाइम सेम रहेगा पर डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट रहेगा. तो d1 आई एम टेकिंग 1 किलोमीटर, d2 आई एम कंसिडरिंग 1.5 किलोमीटर, बट t1 टाइम इज सेम, दैट वी आर कंसिडरिंग 5 मिनट एज एन एग्जाम्पल. तो यहाँ पर जो पार्टिकल है वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डिफरेंट डिस्टेंस बट टाइम इज इक्वल. डिफरेंट डिस्टेंस बट टाइम इज इक्वल. इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड.
I hope all of you understood the concept of non-uniform speed. Uniform speed, so equal distance in equal time, distance time same रहेगा. And a non-uniform speed, so different distance but equal time interval, it is non-uniform speed. I hope all of you understood the concept of non-uniform and uniform speed. Now move to the different cases of average speed. अभी तक हमें एक ही फॉर्मूला पता है एवरेज स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट उसकी 3 जनरल इक्वेशन से अब हमें उसी का स्टडी करना है. 3 जनरल इक्वेशन ऑफ एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड डिफरेंट फॉर्म्स. इट इज IMP फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो केस नंबर 1, distance and time are given in the question. अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्टेंस एंड टाइम दिया हुआ है और पूछा है फाइंड द एवरेज स्पीड, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं. वाई वी गो विथ एवरेज? बिकॉज देयर आर मोर देन वन ऑब्जर्वेशन. जब भी एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन रहेंगे वी गो विथ द एवरेज. तो पार्टिकल मूविंग ओवर अ स्ट्रेट पाथ, d1 डिस्टेंस ट्रैवल इन t1, d2 इन t2, dn इन tn. तो यहाँ पे डिस्टेंस अलग है, टाइम अलग है, बट लेकिन हम देख सकते हैं केस 1 क्या है, डिस्टेंस एंड टाइम गिवन क्वेश्चन के अंदर. तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल. टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल. सो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर में है d1 प्लस d2 अप टू dn अपॉन टाइम इंटरवल. टाइम इंटरवल होगा t1 प्लस t2 अप टू tn. तो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला बच्चों कब यूज करना है, याद रखो जब क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या दिया होगा, डिस्टेंस एंड टाइम. डिस्टेंस एंड टाइम गिवन, सो यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन. दिस इज द फर्स्ट फॉर्म फॉर एवरेज स्पीड. Now move to the second form of average speed. Speed and time are given in the question. अगर क्वेश्चन के अंदर स्पीड टाइम दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया है, तो फिर क्या करना है, जनरल फॉर्म क्या है वो देख लो. पार्टिकल अगेन मूविंग ओवर स्ट्रेट पाथ, दिस इज अगेन अवर बाइकर. दिस टाइम डिस्टेंस इज नॉट गिवन, स्पीड v1 फॉर टाइम t1, speed v2 for time t2, and speed vn for time tn. So in this question distance is not given, d is not given, correct. तो फिर हमारा जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम वो यूज नहीं हुआ क्योंकि डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है. तो फिर हमें क्या करना है वो देखते हैं. एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस d1 प्लस d2 अप टू dn अपॉन t1 प्लस t2 अप टू tn. अब मैथ्स में आपको पता है जो नहीं दिया है उसे एलिमिनेट कर देंगे. तो क्या नहीं दिया है, डिस्टेंस. तो डिस्टेंस नहीं दिया है तो उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो मेक डिस्टेंस एज अ सब्जेक्ट, तो d इक्वल टू vt. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो d इक्वल टू vt. तो d की जगह पर हम क्या रख देंगे, vt. तो d1 रिप्लेस बाय v1 t1, d2 रिप्लेस बाय v2 t2, dn रिप्लेस बाय vn tn अपॉन t1 प्लस t2 अप टू tn. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस. अब ये जो हमारी फॉर्मूला एवरेज स्पीड की, इसमें देखो ये सेकेंड फॉर्म है, स्पीड एंड टाइम इज देयर, डिस्टेंस इज नॉट गिवन. तो ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड का कब यूज करना है, जब स्पीड एंड टाइम दिया हो तब. Now based on it, one example, a particle moving over a straight path, moving with speed v1 for time t. देखो मैंने t को t1 t2 नहीं लिखा है, स्पीड v2 for time again t, मीन्स इक्वल टाइम है. आप ऐसा सोच सकते हो कि पहले 5 मिनट में स्पीड 10 है, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में स्पीड 20 है, तो टाइम सेम है, 5 मिनट, स्पीड डिफरेंट है. तो यहाँ पर क्वेश्चन में v एंड t दिया है, तो ये वाली फॉर्मूला यूज होगी ओनली फॉर 2 ऑब्जर्वेशन. तो v1t
प्लस V2t अपॉन T1 प्लस T2, बट सबकी जगह पर आएगा T बिकॉज टाइम सेम है। तो T कॉमन एंड कैंसल, तो वी गेट V1 प्लस V2 बाई 2। तो ये हो गई आपकी शॉर्टकट। ये याद रखना है सब लोगों को, पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पर मूव हो रहा है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो फॉर 2 ऑब्जर्वेशन। See, particle moving over a straight path, speed different, time different, but distance is not mentioned. So what we do, we eliminate the d and we get the formula of average speed. And the formula average v is equal to v1 plus v2 by 2 कब यूज करना है याद रखना, जब दो ऑब्जर्वेशन हो, स्पीड डिफरेंट हो बट टाइम सेम हो और एवरेज स्पीड पूछिए तो डायरेक्ट शॉर्टकट एवरेज v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2 अप्लाई कर देना है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट क्लियर। नाउ थर्ड केस, speed and distance are given in the question. So in the question speed and distance are given but time not given. इस बार हमें टाइम नहीं दिया है। Again our biker moving over a straight path, distance d1 with speed v1, covering distance d2 with speed v2, dn with vn and time is not given. तो इस बार हमारी फॉर्मूला में टाइम नहीं है तो हमें किसे एलिमिनेट करना है। आगे प्रीवियस केस में हमने किसे एलिमिनेट किया था, स्पीड को, तो यहाँ पर किसे एलिमिनेट करेंगे, टाइम को। तो एवरेज स्पीड जनरल इक्वेशन d1 प्लस d2 अप टू dn अपॉन t1 प्लस t2 अप टू tn, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज एवरेज स्पीड, बट दिस टाइम इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू एलिमिनेट द टाइम। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो t1 की जगह पर अब क्या आ जाएगा, d1 अपॉन v1, तो d1 प्लस d2 अप टू dn अपॉन d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2 अप टू dn बाई vn। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। जब क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस एंड स्पीड दिया है तब ये यूज करना है, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम नहीं दिया होगा, टाइम इज नॉट गिवन हियर। नाउ इस पे बेस्ड एक आध दो एग्जांपल्स देखते हैं। पार्टिकल मूविंग ओवर अ स्ट्रेट पाथ कवरिंग इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। आपको देख लेना है, मैंने d को d1 d2 नहीं लिखा है बट v को v1 v2 लिखा है, मीन्स डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है, करेक्ट। और हमें पूछा है कि एवरेज स्पीड फाइंड करो ऐसे सिचुएशन में, तो यहाँ पर हमें टाइम नहीं दिया हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जो अभी हमने डिराइव किया है, बट दो ऑब्जर्वेशन तक ही होगा। तो d1 प्लस d2 अपॉन d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2, but here distances are equal, so d1 d2 replaced by d, so d plus d upon d by v1 plus d by v2, d common and cancel, so in numerator remaining what, 1 plus 1, that is 2 upon 1 upon v1 plus 1 upon v2, and on solving this we will get the answer average speed is equals to 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एलसीएम लोगे तो ये आंसर आ जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये कब यूज करनी है फॉर्मूला याद रखना है, जब सेम डिस्टेंस है बट स्पीड डिफरेंट है, सेम डिस्टेंस डिफरेंट स्पीड फॉर 2 ऑब्जर्वेशन। नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर वन मोर स्टेप, दिस टाइम वी टेक 3 ऑब्जर्वेशन, डिस्टेंस इज सेम फॉर 3 ऑब्जर्वेशन and speed is different. For d it is v1, for again d it is v2, for then d it is v3, again we have to find average speed. तो आगे के क्वेश्चन में 2 ऑब्जर्वेशन तक था, अब 3 ऑब्जर्वेशन तक है, तो यही फॉर्मूला वापस यूज करेंगे अप टू 3 ऑब्जर्वेशन। सो इट इज d प्लस d अपॉन d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3। अगेन d कॉमन एंड कैंसल, न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। नाउ
taking LCM, so 3 V1 V2 V3 upon V1 V2 plus V2 V3 प्लस V1 V3। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज करनी है जब आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है फॉर 3 ऑब्जर्वेशन। 3 इक्वल डिस्टेंस होंगे बट स्पीड अलग होगी, टाइम नहीं दिया है, तब ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट क्लियरली। सो व्हेन वी कैन यूज द एवरेज स्पीड, ओके, फर्स्ट केस फॉर एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, तो ये केस होगा। Second case we discuss average speed form for speed and time, and this is the formula V1 plus V2 by 2 when 2 time intervals are given but speed different, time same. And then after, the third form of average speed when distance and speed are given. I hope all of you understood this. डिस्टेंस यहाँ पर सेम है, स्पीड अलग है फॉर 2 ऑब्जर्वेशन और यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशन के लिए। तो 3 ऑब्जर्वेशन के लिए ये फॉर्मूला आएगी। तो आई होप सब लोगों को एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया है। एवरेज स्पीड के 3 अलग अलग फॉर्म्स भी समझ में आ चुके हैं। अब इस पे बेस्ड एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में इसके रिलेटेड प्रैक्टिस नहीं दी है तो हमें एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सी द क्वेश्चन, अ बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड रिवर्स, देन आफ्टर इट गेट रिवर्स फ्रॉम बी टू ए at 60 meter per second. Calculate average speed and average velocity. अब सिचुएशन देखते हैं, ये पॉइंट A and it is point B. First particle is moving from A to B with speed 40 meter per second, and then after B to A it is 60 meter per second. So listen, when particle is moving from A to B and then moving from B to A, डिस्टेंस तो सेम ही होगा। अगर आप स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हो, रिवर्स टर्न लोगे तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। तो डिस्टेंस अगर सेम है और 2 ऑब्जर्वेशन है तो उसकी शॉर्टकट अभी हमने आगे की थियरी में देख ली है। 2 ऑब्जर्वेशन है, डिस्टेंस सेम है और स्पीड अलग अलग है, तो फॉर्मूला क्या था, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये शॉर्टकट से आप डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हो। हियर A टू B एंड B टू A डिस्टेंस सेम था, डिस्टेंस सेम है और स्पीड डिफरेंट है, तो ये रही शॉर्टकट 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज, 2V1 इज 40, V2 इज 60 अपॉन 40 plus 60, 48 meter per second. This is the answer of average speed. Now the second question is average velocity. Average velocity is equal to displacement upon time. Displacement is equal to, we write final position minus initial position. अब यहाँ पे मोशन जो स्टार्ट हुई थी वो A से थी और एंड भी जो था वो A पर ही है, तो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस आर सेम। तो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस आर सेम एंड टाइम इंटरवल आई राइट एज अ डेल्टा t. फाइनल पोजीशन इज A, इनिशियल पोजीशन इज A माइनस A 0, तो आंसर इज 0 मीटर पर सेकेंड। So speed is 48 and velocity is 0. Velocity क्यों 0 हुई? क्योंकि यहाँ पर displacement जो है वो 0 था। Move to the next question. A body covers 1/3 of its journey with speed u, next 1/3 with speed v, and the last 1/3 with speed w. Calculate the average speed of the body during the entire journey. तो यहाँ पर क्वेश्चन में
होल डिस्टेंस डिवाइड इनटू इक्वल 3 पार्ट, यानी यहाँ पर 3 इक्वल डिस्टेंसेस है, d/3, d/3 एंड d/3. एंड फर्स्ट इट्स स्पीड इज u, देन v एंड देन w. टाइम इज नॉट गिवन, तो हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है एवरेज स्पीड का, क्योंकि यहाँ पर टाइम नहीं दिया है और ये बहुत आसान है, डिस्टेंस इक्वल है. तो हमने अभी शॉर्टकट पढ़ लिए थियरी के अंदर, अगर 3 इक्वल डिस्टेंसेस है तो 3v1 v2 v3 v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड. नाउ v1 replaced by u, v2 replaced by v, v3 replaced by w. So putting all the values here, v2 replaced by v, v3 by w and v1 v3 as a uw. This is the final answer. यहाँ पर 3 इक्वल डिस्टेंसेस थे बट स्पीड अलग अलग थी, तो आगे हमने थर्ड फॉर्म के अंदर सेकेंड केस देख लिया था और ये इसकी शॉर्टकट थी. इसमें मैंने सिर्फ वैल्यू रख दी है v1, v2 एंड v3 की. ये अपना फाइनल आंसर होगा. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, मोस्ट IMP क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन मैं बाद में भी कराऊंगा, आप चिंता मत करना. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. से अ बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन 1/2 of the total distance with a velocity v0. See the situation. टोटल डिस्टेंस जो है वो है d, ये टोटल डिस्टेंस, उसका हाफ यानी d/2. ट्रैवल विद द स्पीड v0. तो पहले हाफ डिस्टेंस के अंदर हमें क्या नहीं दिया है. देखो, पहले हाफ डिस्टेंस का कैलकुलेशन मैं लास्ट में कर रहा हूँ, लेफ्ट में कर रहा हूँ. तो फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस स्पीड है, डिस्टेंस है बट टाइम नहीं है. तो v0 इक्वल टू डिस्टेंस इज d/2 एंड टाइम वी आर सपोजिंग इट इज t0. सो मेकिंग टाइम एज अ सब्जेक्ट बिकॉज टाइम इज नॉट गिवन, सो वी जस्ट फाइंड इट. तो t0 इक्वल टू वी गेट d/2v0. t0 को सब्जेक्ट बनाए फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस AB. देन फॉर सेकेंड हाफ डिस्टेंस BC, बाकी का जो हाफ डिस्टेंस है d/2, उसके अंदर पार्टिकल कैसे मूव हो रहा है. सो BC का डिस्टेंस d1 एंड d2. d1 ट्रैवल विथ t एंड d2 ट्रैवल विथ t. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. So for second half distance BC पार्ट के 2 पार्ट किए, अंदर ही d1 एंड d2. d1 ट्रैवल किया है t टाइम में और d2 ट्रैवल किया है t टाइम में. अब यहाँ पर d1 के टाइम स्पीड है v1, d2 के टाइम है स्पीड v2. तो वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टोटल डिस्टेंस d/2 इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया d1 प्लस d2 फ्रॉम द ज्योमेट्री. d1 replaced by v1t, d2 replaced by v2t. Speed equal to distance upon time, तो distance equal to speed into time. So v is equal to d upon t, d is equal to vt. Everybody focus on the second half distance again. See, in the question, a body traveling along a straight line 1/2 of the total distance with velocity v0, जिसका कैलकुलेशन हमने AB के नीचे करके रखा हुआ है, वो हो गया. Then after the remaining part of the distance was covered with velocity v1 for half the time. तो BC पार्ट है, उसमें टोटल टाइम मैंने एज्यूम किया है 2t. मैंने 2t क्यों एज्यूम किया, क्योंकि उसका हाफ करना था एज पर द क्वेश्चन. तो 2t का हाफ होगा t, वो फ्रैक्शन में नहीं जाएगा तो इजी रहेगा हमारे लिए. तो BC के पार्ट के अंदर पहले हाफ टाइम t1 में स्पीड कितनी है, तो हमने एज्यूम की v1. डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया d1. एंड फॉर रिमेनिंग पार्ट d2 द टाइम इज t एंड स्पीड इज v2. एंड क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एवरेज स्पीड. नाउ एवरीबडी ऑब्जर्व द सेकेंड हाफ डिस्टेंस. सेकेंड हाफ डिस्टेंस d/2 है, उसको मैंने लिखा है d1 प्लस d2. ज्योमेट्री में दिख रहा है d/2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2 एंड d1 रिप्लेस्ड बाय v1t प्लस v2t.
आई होप सबको समझ में आ गया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, फोर्थ वाला क्वेश्चन माइनर कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो चिंता मत करना, ये हम वापस जरूर करेंगे। नहीं होता है तो होमवर्क में भी मत करना। नाउ फर्दर, dy2 इज इक्वल्स टू t कॉमन v1 प्लस v2। अब टोटल डिस्टेंस देखो, BC में कितना था, t प्लस टी, दैट इज 2t। तो आई मेक 2t एज अ सब्जेक्ट, तो आई गेट d अपॉन v1 प्लस v2, इक्वेशन 2। So t0 time it is for AB part that we get, and for BC part the total time is 2t। वो टाइम 2t भी हमें मिल चुका है, 2t इक्वल्स टू d अपॉन v1 प्लस v2। अब हमारे पास टाइम आ चुका है तो एवरेज स्पीड मिल जाएगा बहुत आसानी से। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टोटल डिस्टेंस इज d अपॉन टोटल टाइम। पहले हाफ टाइम का डिस्टेंस था t0 प्लस रिमेनिंग हाफ का टाइम था 2t। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 t0 एंड 2t की वैल्यू रखनी है। t0 इज d अपॉन 2 बाई v0 and 2t replaced by d upon v1 plus v2। आई होप सब लोगों को समझ में आ चुका है। d कॉमन एंड कैंसल, सो 1 अपॉन 2v0 प्लस 1 अपॉन v1 प्लस v2। नाउ टेकिंग LCM, so v1 plus v2 and 2v0, v1 plus v2 plus 2v0 upon 2v0 in bracket v1 plus v2। LCM लिया हुआ है। डिनोमिनेटर शिफ्ट टू द न्यूमरेटर, so it is 2v0 v1 plus v2 upon v1 plus v2 plus 2v0। दिस इज द फाइनल आंसर। IMP क्वेश्चन, बट नहीं हो रहा है तो छोड़ देना चलेगा, मैं बाद में कराऊंगा वापस। तो टोटल डिस्टेंस d था, उसका हाफ डिस्टेंस है d/2, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड मूविंग विथ स्पीड v0। फर्स्ट AB पार्ट में टाइम नहीं था तो वो टाइम फाइंड किया t0। फॉर सेकेंड हाफ ऑल्सो टाइम इज नॉट गिवन, तो हमने टाइम फाइंड किया, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि इक्वल टाइम में डिवाइड करना है, तो मैंने 2t सपोज करके tt में डिवाइड किया। देन फ्रॉम ज्योमेट्री d/2 इक्वल्स टू d1 प्लस d2, एंड देन आफ्टर वी मेक 2t एज अ सब्जेक्ट। टोटल डिस्टेंस जो था वो d था, एंड टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम था t0 प्लस 2t, वो वैल्यूज यहाँ पे रख दी, LCM ले लिया और आंसर आ गया है। देन आफ्टर फोर्थ क्वेश्चन, ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक a train travels the first 30 kilometer with a uniform speed 30 kilometer per hour. How fast must the train travel the next 30 kilometer so as to average 40 kilometer per hour for the entire trip? तो यहाँ पर सिचुएशन देख लेते हैं पहले। पहला डिस्टेंस है 30 किलोमीटर एंड सेकेंड ऑल्सो 30 किलोमीटर। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग है, तो कौन सी फॉर्मूला आएगी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ओके, v1 इज गिवन 30 किलोमीटर पर आवर, v2 नॉट गिवन, यहाँ पर हमें v2 फाइंड करना है, बट एवरेज स्पीड इज गिवन। एवरेज स्पीड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे दी है, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, बट हियर v2 इज नॉट गिवन। सो एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए यहाँ पर देखो डिस्टेंस हमें सेम है 30 किलोमीटर एंड 30 किलोमीटर, स्पीड डिफरेंट है और दो ही ऑब्जर्वेशन है, तो फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। एवरेज स्पीड गिवन हियर दैट इज 40। 2v1 is given 30, v2 we have to find, v1 is 30 and v2 we have to find. Now doing cross product, 40 into bracket 30 plus v2 is equal to 2 into 30 into v2। अब ये आप सॉल्व कर लेना,
तो आंसर आएगा V2 इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। सो फॉर सेकेंड हाफ डिस्टेंस ट्रेन की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर होगी। आई होप सब लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका है। आज हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, उसके केसेस और उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, करेक्ट। अब सैटरडे जो अपना लेक्चर होगा जूम ऐप पर, इसमें यही पॉइंट थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो देख के लर्न करके होमवर्क कर लेना। कोई डाउट हो तो कॉल भी कर सकते हो। गुड बाय, थैंक यू।